In the last class, we have completed up to integers. In the integers, we have studied about the different sign conventions. So here also there are different, in multiplication also some sign conventions are there. One thing you have to always remember, okay, as in the last class we have used the number line, and after using the number line we knew that whenever you are doing the solution of minus and plus, you are getting minus, plus and minus, you are getting minus. In multiplication also some sign conventions are there, like when you will multiply, one second. When you will multiply when you will multiply minus with plus, you will get minus. When you will multiply plus with minus, you will get minus. When you will multiply minus with minus, you will get plus. When you will multiply plus with plus, you will get plus. This is the normal sign conventions which you have to remember throughout your life. आपके जिंदगी भर में ये चीज आपको भूलना नहीं है. This thing you have to remember in anyhow. जैसे भी करके आपको ये वाला जो पार्ट है आपको याद रखना है. Now let us move to our next topic. The next topic is rational numbers. So what are rational numbers? You all know about the fractions. Fractions के बारे में हम लोग जानते हैं. We all know about different fractions. So in the fractions, if you will add integers into fractions, अगर मैं fractions के बाद integers के perspective पर बोलूं तो वो एक rational number होगा. But here we will define rational number as a form of in a different way. एक अलग हिसाब से rational number को हम define करेंगे. How? See, rational number means the number. Rational number means we can say that the numbers which will be the numbers which will be in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Means suppose I have one fraction like p and q. This is my fraction. ये मेरा fraction. इस fraction में अगर p एक integer हुआ, p is also one integer and q is also one integer. Okay. p भी एक integer हुआ, q भी एक integer हुआ, तो in integers में, in this integers, if these are the integers and if q is not equal to 0, तब मैं इसको बोल सकता हूँ rational number. That means the integers can be positive also and negative also, as we have already discussed in our last class, that group of numbers which have positive numbers and negative numbers including 0 are the integers. So if positive will be in the numerator side and negative will be in the denominator side, and the denominator will be not equal to 0, then I can call that as a rational number. Suppose मैं लिखता हूँ -1/2, then -3/4 और 1/2. These all are the rational numbers. Okay. These all are the rational number. मैं सिर्फ आपको rational number का वही चीज बोलूंगा जो कि आपको 10th क्लास में काम देगा. I'm not telling you deeply about the rational number, but there are also some things like how to find the between rational number that you have already learned in your 9th class. Okay. Now these are the complete concept of rational number. यही होता है rational number. अभी रेशनल नंबर में और एक टॉपिक है, हम वो इरेशनल नंबर के पर्सपेक्टिव पर पढ़ेंगे. ओके. इन रेशनल नंबर यू न्यू दैट दोज नंबर व्हिच विल बी इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, are the rational number. But those numbers which can't be written in the form of p by q are irrational number.
जिस नंबर को हम p बाय क्यू फॉर्म में लिख नहीं सकते वही होता है इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई हैव वन नंबर 1/2, ये एक रेशनल नंबर है। इफ आई विल डिवाइड दिस 1 with 2, what I will get? 2 0 0, 1 will be there, 0.0, okay, then 2 5 जा 10। जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो एक डेसिमल में एक नंबर आता है। डेसिमल मीन्स व्हाट, आई हैव शिफ्टेड इट टू द लास्ट, बट अभी मैं बोल दे रहा हूं डेसिमल क्या है। डेसिमल मीन्स अ फ्रैक्शन। कोई भी एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन के नीचे अगर 10 है, 10 या 10 का मल्टीपल है, if it will have 10 or multiple of 10, then it will be called as what? Decimal. Okay. अगर मैं 1/10 लिखूं, ये भी एक डेसिमल है। एक 1/100 लिखूं, ये भी एक डेसिमल है। 1/1000 लिखूं, ये भी एक डेसिमल है। एक सिंपल चीज बोलता हूं, हाउ टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। सपोज आई हैव द नंबर 1/10। अगर मेरे पास एक नंबर है 1/10, अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, हाउ आई विल कन्वर्ट इट? सो वन थिंग, यू हैव टू गिव द पॉइंट। पहले आपको एक पॉइंट देना है। पॉइंट देने के बाद एक के बाद कितना जीरो है वो आपको काउंट करना है। सो आफ्टर 1 0 इज देयर, सो पॉइंट के बाद एक ही नंबर रहेगा ऊपर। फिर आपको न्यूमरेटर के साइड देखना है कि ऊपर कितना तो नंबर है। एक ही नंबर है तो वही एक नंबर को आप पॉइंट के साइड पर लिख दोगे। और एक को छोड़कर और कुछ बचा है क्या? एक को छोड़कर और कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए आगे लगा देंगे हम 0। सो दिस इन दिस वे द नंबर आर मेड। सपोज हमारे पास और एक नंबर है 12/10। सपोज वी हैव अनदर नंबर 12/10। I have to convert this the 12/10 into decimal. How I will convert it? See, यहाँ पर टोटल कितना नंबर है? दो। यहाँ पर टोटल डिजिट कितने हैं? 2 डिजिट। And after 1, how many zeros are there? 1 zeros is there. So first you will put the point here. एक के बाद 1 0 है, इसका मतलब हम लास्ट के एक डिजिट को ही लेंगे। So it will be 2। 2 के लास्ट के एक डिजिट ले लिए और कितना बचा है? 1 बचा है, तो उसको इधर ले लेंगे। So in this way, our decimal numbers are made. So if I will convert 1/2 into decimal, it is coming 0.5. अगर मैं 1/2 को डेसिमल में लिखूं 0.5 आ रहा है, मतलब 0.5 में 0 हो जा रहा है। So those numbers which can be through which when we will divide, the remainder becomes 0. एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 आ जाता है। दैट टाइप ऑफ नंबर आर नोन एज टर्मिनेटिंग नंबर। उस टाइप के नंबर को मैं क्या बोलूंगा? टर्मिनेटिंग नंबर। सो लेट मी क्लियर इट अगेन। अच्छे से मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो, टर्मिनेटिंग, नाउ वी हैव टू थिंग्स, वन इज टर्मिनेटिंग, अनदर वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। हमारे पास अभी ये दो तो कॉन्सेप्ट आ रहा है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। दिस व्हाट आर दिस? ओके, सी 1/2 को जब मैं डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.5। लेकिन जब मैं 1/3 को डिवाइड करता हूं मेरे पास क्या आता है देखते हैं। 1/3 को डिवाइड करता हूं क्या आता है? 3 0 0 विल बी 1 - 0 1। यहाँ पर पॉइंट देंगे, यहाँ पर 0 देंगे। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करता हूं, 3 3 9 होगा, 1 आया, 0 देंगे, 3 3 9 आया, 1 आया, 0 देंगे। तो ये जो 3 3 3 है वो ऐसे रिपीट होते चला जाएगा। So here you can see that here 0 is not coming in any of the step or any of the point. Means here this number will be repeated. So this type of numbers are known as what? Non-terminating number. This type of repeating number are called, or repeating decimal are called non-terminating number. तो यही है हमारा इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। तो इरेशनल क्या क्या नंबर हो सकते हैं? √2, √3, रूट वाले नंबर भी इरेशनल नंबर होंगे। आप लोग जानते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? पाई का वैल्यू आप लोग जानते हो 22/7। पर ये जो है ये भी एक इरेशनल नंबर है। कैसे? देखो, व्हेन आई विल डिवाइड 22/7, ये क्या होगा? 7 3 जा 21, 22 - 21 1 होगा, 0.0। उसके बाद जब इससे 7 1 जा 7, 3 हो गया, यहाँ पर 3 है, 0 बचा है। मतलब ये जो चीजें हैं ये यहाँ पर भी रिपीट होता चला जाएगा। सो दिस व्हाई दिस नंबर इज आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग। तो यही है हमारा, दिस इज आवर कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ इरेशनल नंबर। नाउ इफ वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक,
that is decimal. I already told you about decimal. Now we are moving on to the factors and multiples. What are factors and what are multiples? Before moving on to factors, we need to go to another concept, that is divisibility rule. पहले हमें divisibility rule के बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है. So what are divisibility rules? See here. There are some numbers through which we can estimate that it will be divisible by these numbers or not. हम कुछ कुछ नंबर्स लेंगे जिस नंबर से हम कुछ रूल निकालेंगे. सो आई एम टेकिंग सम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. इतना नंबर का हम डिविजिबिलिटी रूल निकालेंगे. मतलब इन इन नंबर से कौन कौन सा नंबर है, कैसे कंडीशन होने पर जो नंबर्स हैं वो 2 में डिवाइड होंगे या 3 में डिवाइड होंगे या 4 में डिवाइड. सो आई एम टेलिंग यू वन थिंग, टेक आउट योर नोट्स एंड नोट इट डाउन, क्योंकि मैं अभी बहुत स्पीड में बोलने वाला हूँ. अगर आपको उस स्पीड में बोलने पर भी कुछ प्रॉब्लम्स होता है या आप समझ नहीं पाते, यू कैन कमेंट इन, you can ask the doubt in the comment section पर आप डाउट पूछ सकते हो. So if I will say about the divisibility rule of 2, अगर मैं divisibility rule of 2 अगर मैं बताऊं तो ये क्या होगा. if in one's place even number will be there, okay, one's place पर अगर even number है तो वो नंबर 2 में डिवाइड होगा. फॉर एग्जाम्पल 10, 12, 14, 16. In one's place you can see that one's place पर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है. तो इस हर एक कंडीशन पर आप लोग ये देख सकते हो कि here even number is there. If in any of the number in the one's place even number will be there, then that number will be divisible by 2. तो ये हुआ 2 का डिविजिबिलिटी रूल. अगर हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल को अगर देखें, sum of the digit must be divisible by 3. कुछ suppose I am writing one example. I have written 63. I have written 63. मैं 63 लिखा. इस 63 में डिजिट्स क्या क्या है? Here the digits are 6 and 3. If I will find the sum of 6 and 3, it came 9. जब मैं 6 और 3 का सम निकाला 9 आया. As 9 टेबल, as we know that 3 3 जा 9, 3 के टेबल में 9 आता है तो 63 भी 3 में डिवाइड होगा. दैट मीन्स अगर हम किसी नंबर के डिजिट्स को सम कर लेते हैं और सम में जो आंसर आएगा वो अगर 3 में डिविजिबल है, वो कंप्लीट नंबर जो है, दैट नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 3. नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4. व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4? लास्ट 2 digit must be divisible by 4 or it must be 0. अगर लास्ट 2 digit 4 में डिवाइड हुआ या लास्ट 2 digit 0 हुआ तब वही नंबर 4 में डिवाइड होगा. फॉर एग्जाम्पल आई हैव वन नंबर 216 एंड आई हैव अनदर नंबर 400. तो बहुत इजी हो जा रहा है, 400 तो बहुत इजी हो जा रहा है. लेट अस टेक 300. इफ आई विल डिवाइड 216 में अगर आप देखोगे तो लास्ट 2 डिजिट में 16 है, तो इसको मैं बोल सकता हूं व्हेन आई विल डिवाइड इट बाय 4, 4 5 जा 20, 21 माइनस 20 करेंगे 1 होगा, 6 नीचे आएगा, 4 4 जा 16. So in this way you can write anything. Then another number if I will say, that is 300. In 300 also 4 6 ja 24. Sorry 4 7 ja 1. sorry. अगर मैं डिवाइड करूं 300 को 4 7 जा 28, 4 5 जा
20 0. तो अब लोग when so I can explain that if the last two digit will be divisible by 4 or last two digit will be 0, then the number will be divisible by 4. Okay. Now these are the numbers, these are the sum divisibility rule. I thought you may have written this. Okay. Now I am erasing this and I will now give you the divisibility rule about 5, 6, 8, 9, 10, 11. Okay. Okay. Now the divisibility rule of 5. If in one's place 0 or 5 will be there, अगर वंस प्लेस पर 0 और 5 है तो वो 5 में डिविजिबल होगा. ओके. सी 25, 30, 60, 95, these numbers will be divisible by 5 as in the ones place 5 is there. Next, divisibility rule of 6. 6 का divisibility rule क्या है? If the number divisible by both 2 and 3, then the number is also divisible by 6. अगर कोई नंबर 2 और 3 में डिविजिबल होता है तो वही नंबर 6 में भी डिविजिबल होगा. फॉर एग्जाम्पल 36. इन द 36 इज डिविजिबल बाय 2. व्हाई? क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 6 है. अगर मैं इसका सम निकालूं 6 प्लस 3 और 3 प्लस 6 9 होगा. 9 means it will be also divisible by 3. So those number which will be divisible by both 2 and 3, that number also divisible by 6. Now we will move into the divisibility rule of 8. Last 3 digit must be divisible by 8. लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 में डिवाइड होना चाहिए, नहीं तो लास्ट 3 डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए. देन इट नंबर. 9 का सेम, 3 का डिविजिबिलिटी रूल 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है. खाली डिफरेंस ये है कि 3 में अगर डिजिट को आप ऐड करते हो तो वो 3 में डिविजिबल होना चाहिए. 9 में अगर आप डिजिट को ऐड करोगे तो 9 में डिविजिबल होना चाहिए. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 और 11. तो अभी 10 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. ओके. सो इफ आई विल से अबाउट द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, अगर मैं 10 का डिविजिबिलिटी रूल अगर चेक करूं, in one's place if 0 will be there, 0 will be there, अगर one's place पर 0 है तो वो 10 में डिवाइड होगा. फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30, 100, ये हियर वंस प्लेस में 0 है तो वो 10 में डिवाइड होगा. 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझोगे आपको बहुत ही इजी लगेगा. So let me tell you how the rule is complicated. Suppose I have one number, दिस इज वन नंबर, ये एक नंबर है. अभी मैं क्या करूंगा, इस नंबर के आपको इवन प्लेस और ऑड प्लेस इन सबको मार्क करना है. ऑड प्लेस मतलब पहला प्लेस ऑड प्लेस होगा तो इसको मैं ऑड प्लेस मार्क कर दूंगा.
और थर्ड वाला एक ऑड प्लेस होगा, तो ये दोनों ऑड प्लेस हो गया। आप क्या करोगे, अभी ऑड प्लेस जो भी है उन सबको प्लस कर दोगे, तो 6 + 2 ये जो ऑड प्लेसेस है इसको मैं लिख दिया 8, और एक इवन प्लेस एक ही है और माइनस करके उसके इवन प्लेस को माइनस कर दोगे। तो अगर आंसर 0 और 11 आया, इसमें आंसर 0 आया, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। मींस आफ्टर एडिंग द odd places and adding the even places, after subtracting both the places, if you are getting 0 or 11, then that number will be divisible by 11। तो ये है हमारा divisibility rule। now if we will analyze about the factors और multiples के हिसाब से अगर हम इनको जानने के लिए कोशिश करें, तो इन factors and multiples to which number a number is divided, or to which number I will divide a number so that the remainder will be 0, that are the factors। एक नंबर को आप किसके साथ डिवाइड करने पर आंसर 0 आएगा, वही ही फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल डिवाइड 12 with what are the numbers to which I will divide 12 so that the remainder will be 0। 1 में अगर मैं डिवाइड करूंगा, 2 में अगर मैं डिवाइड करूंगा, 3 में अगर मैं डिवाइड करूंगा, 4 में अगर मैं डिवाइड करूंगा, 6 में अगर मैं डिवाइड करूंगा, देन 12 में अगर मैं डिवाइड करूंगा, तो इन ये जो 1 2 3 4 6 और 12 में अगर मैं 12 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आ जाता है 0। सो दीज आर द फैक्टर्स, यही उनका फैक्टर्स है। मल्टीपल मींस व्हाट? मल्टीपल्स इज अनकाउंटेबल। मल्टीपल्स मींस वो नंबर का टेबल, the table of that number is the multiples। that means if I will write first 5 multiples of 3, अगर मैं 3 का first 5, these are the factors, इनको मैं factors बोलूंगा। अगर मैं multiples के बारे में लिखूं, if I will write about the multiples, okay, the first 5 multiples of 3 is 3 into 1, that is 3, 3 into 2, that is 6, 3 into 3, that is 9, 3 into 4, that is 12, 3 into 5, that is 15। so these are the concept of factors and multiples। so in factors and multiples we have two concepts, that is HCF and LCM। HCF और LCM है, तो वो क्या है देख लेते हैं। HCF क्या है और LCM क्या है। HCF, H means highest, H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन, और F का मतलब होता है फैक्टर, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, सो व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? C। अगर मैं 12 और 15 का HCF निकालना चाहूंगा, सो फर्स्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस पहले हमको 12 और 15 का फैक्टर निकालना होगा। सो हाउ आई विल फाइंड द फैक्टर? C। इसका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। ओके, देन 15 का क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। ओके, सो इन दिस नंबर यू हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब क्या है? एक ऐसा फैक्टर जो 12 में भी है और 15 में भी है। ओके, तो इधर अगर हम देखेंगे तो 12 और 15 का जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है? एक है 1 है और एक है 3 है। ये 1 और 3 ये दोनों आते हैं। आउट ऑफ 1 and 3 वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 और 3 कॉमन फैक्टर है। इन 1 और 3 में से हाईएस्ट क्या है? 3 है। सो HCF ऑफ 3 and 12 and 15 विल बी 3। ओके, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। HCF निकालने का एक अलग और एक चीज भी है जो कि आप लोग तो बचपन में पढ़े होंगे, फिर भी बोल देता हूं। और एक मेथड भी है। क्या है वो मेथड? दैट इज बाय राइटिंग देयर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको एक ऐसा नंबर सोचना होगा जो नंबर अगर आप 12 और 15 में डिवाइड करोगे, वो नंबर 12 में भी डिवाइड हो रहा होगा और 15 में भी डिवाइड हो रहा होगा। तो अगर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 2, हमेशा कुछ भी अगर डिवाइड करते हो तो हमेशा 2 में सोचना। तो 12 will be divided by 2 as in 1 plus 2 is there, but here 5 is there, so 15 will not be divided by 2। तो हम 2 को रिजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट नंबर जाएगा 3।
3 12 2 प्लस 1 3, मतलब ये 3 में डिवाइड होगा। 5 प्लस 1 6, तो ये भी 3 में डिवाइड होगा। सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 3। तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। उसके बाद यहां पर जो नंबर होगा वही हो जाएगा एचसीएफ। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ हम ऐसे करके निकालते हैं। नाउ आफ्टर एचसीएफ लेट अस मूव टू द एलसीएम कॉन्सेप्ट। एचसीएफ निकालने के बाद अभी एलसीएम कॉन्सेप्ट को जाएंगे। अभी अगर हम एलसीएम कॉन्सेप्ट को जाएंगे, ओके, इन एलसीएम कॉन्सेप्ट व्हाट डू वी हैव? एल मींस लोएस्ट, सी मींस कॉमन, एम मींस मल्टीपल, lowest common multiple. Okay, for example now I need to find the common multiple. अगर मैं 3 और 6 का कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए कोशिश करूंगा, कैसे निकालूंगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसे करके निकालूंगा। यहां पर क्या क्या निकालूंगा? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो इतना अगर मैं निकालता हूं तो मुझे क्या क्या मिलता है? कॉमन मल्टीपल। ओके, सो आई विल गेट द कॉमन मल्टीपल एज 6 और 12, ये दोनों मिल गया। तो इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है? 6। सो 6 विल बी द एलसीएम। ओके, यहां पर मुझे और एक भी मिल सकता है। अगर मैं 3 और 6 का कॉमन मल्टीपल निकालूं तो इट विल व्हाट? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अभी अगर मैं इसको कॉमन मल्टीपल में क्या करते हैं, एचसीएफ पर हम सिर्फ फैक्टर लेते थे, लेकिन मल्टीपल में हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट विल डू? एलसीएम में, एचसीएफ में जो तुम करते थे ये वाला डिजिट उसको लिख दोगे, उसके बाद नीचे जो बचा है 1 into 2 उसको भी लिख दोगे, तो आंसर आ जाए 6। सो दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ numbers before moving on to the 10th class, that is real number chapter. अभी जो रियल नंबर चैप्टर है, रियल नंबर चैप्टर हम नेक्स्ट सेशन से रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वहां के जो भी कॉन्सेप्ट्स है, नए नए कॉन्सेप्ट्स, वो हम पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू।